Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. Today we are going to start chapter number 4, Light and Shadow. In this chapter we will discuss about what is light, transparent, translucent and opaque objects, what is shadow, condition for formation of shadow, shadow formation during the day, characteristics of shadow. Light is a type of energy that makes it possible for us to see the world around us. Any object that gives us light is called source of light. For example, sun, lamp, tube light, etc. Sun is the natural source of light, and lamp, tube light are the artificial source of light. Now, what is shadow? Shadow is a dark area formed when an opaque object blocks the path of light. Okay? What is light? We are able to see the world with the help of sunlight. Light allows us to see the world around. We feel so energetic and active in the presence of light. Light is the form of energy and it travels in a straight line. Let us perform an activity to examine that light travel in straight line. Light क्या है? Light जिसके कारण हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं उसे लाइट कहते हैं। किससे हम पूरे वर्ल्ड को देखते हैं? सनलाइट से। अगर सनलाइट नहीं होती तो हम पूरे वर्ल्ड को देख नहीं पाते हैं। आपने फील किया होगा जब अपने रूम में डार्क होता है, डार्कनेस होती है, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही हम लाइट को ऑन करते हैं वैसे ही हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के कारण हम एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं। लाइट क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा हम एग्जामिन करेंगे कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। एक्टिविटी 1, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एम to examine that light travels in a straight line. Material required: tubes, one straight, another bent, and a small candle. Method: look at the light coming from the candle. Throw the straight tube and then throw the bent tube. What do you notice? Observation: the candle light can be seen through the straight tube, but nothing can be seen through the bent tube. Can you infer the reason? हमें बताना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। 2 ट्यूब्स चाहिए, एक स्ट्रेट होनी चाहिए और दूसरी बैंड होनी चाहिए, और एक कैंडल। अब आप कैंडल को देखोगे कि जो स्ट्रेट ट्यूब है उससे भी आप देखोगे और जो बैंड ट्यूब है उससे भी आप कैंडल को देखोगे। तो तुम क्या नोटिस करते हो? जो कैंडल लाइट है वह स्ट्रेट ट्यूब से देख सकते हैं, बट बैंड ट्यूब से हम उस कैंडल को नहीं देख सकते हैं। कंक्लूजन: दिस इज बिकॉज दैट लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई लाइट कैन बी सीन थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब. Light from any source is very important for us. We get light from many sources. Some sources of light are natural, whereas some sources are man-made. The source that emits its own light is natural, such as sun and stars. The sources that are man-made are called artificial source of light, such as torch and candle. तो आपने देखा कि जो स्ट्रेट ट्यूब्स है उससे हमें कैंडल दिखाई देती है, और जो बैंड ट्यूब है उससे हमें कैंडल नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अब लाइट की सोर्स क्या है? लाइट कहाँ से आती है? तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। नेचुरल भी है और
मेन मेड भी है। अब जिस ऑब्जेक्ट के पास उनकी अपनी खुद की लाइट होती है उसे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, और जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो मेन मेड होते हैं, उसे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे सन और स्टार, ये क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। और टॉर्च, कैंडल, लैम्प, ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट है। द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास, the objects such as glass, water, cell phone, paper, etc. allow the light to completely pass through them are called transparent object. अब 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें से ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास होती है तो उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ग्लास, वाटर, सेलफोन, पेपर, ये सब क्या हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। द ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑयल पेपर, बटर पेपर एक्सेट्रा allow the light to pass through them only partially are called translucent object. अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट थोड़ा थोड़ा पास होती है, जैसे ऑयल पेपर है, बटर पेपर है, तो ये सब क्या है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। The objects like wood, cardboard, leather, iron, etc. do not allow the light to pass through them are called opaque object. अब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है तो उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे वुड है, कार्डबोर्ड है, लेदर, आयरन एक्सेट्रा। What is shadow? A shadow is a dark area formed when an opaque object comes in the path of light and blocks it. The shadow takes up all the space behind the object with light in front of it. Since the object absorbs light, we see nothing but black color. An opaque object forms a dark shadow as it is able to block light completely, while a translucent object forms a faint shadow as it allows the light to pass through it partially. Shadow means परछाई। शैडो तो आपने देखा ही होगा, क्या है? शैडो कब पड़ता है? जब ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स जिसमें से लाइट पास नहीं होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, तो डार्क एरिया फॉर्म्ड होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शैडो। जैसे कि सनलाइट में आपने अपनी शैडो देखी होगी, तो सनलाइट ये क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। और हमारी बॉडी क्या है? ओपेक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब बीच में आ जाता है, लाइट के बीच में आ जाता है और वो ब्लॉक कर देता है लाइट को आने से, तो हमारा जो शैडो है वो कहाँ पड़ता है? ज़मीन में। तो वो क्या है? शैडो। तो इससे शैडो फॉर्म होता है। तो इससे जो ऑब्जेक्ट है वह लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, और हमें फिर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, खाली एक ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो वो ब्लैक कलर का क्या होता है? शैडो। और जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है उसका जो शैडो पड़ता है वह फेंट मीन्स थोड़ा थोड़ा पड़ता है, क्योंकि वह लाइट पास तो होती है बट थोड़ा सा लाइट पास होती है उसमें, इसलिए जो शेडो होता है उसका वह फेंट होता है। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। द शैडो रिक्वायर्स द फॉलोइंग 3 कंडीशन टू फॉर्म: अ सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द वे, अ स्क्रीन टू सी अ शैडो। अब शैडो के फॉर्मेशन के लिए शैडो कैसे बनता है उसके लिए भी 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, लाइट कहाँ से आती है वो होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पर शैडो पड़ सके। द स्क्रीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो कुड बी अ वॉल, अ कार्डबोर्ड और सिंपली ग्राउंड। वी कैन गेट some information about shapes of object from shadow. The color of the opaque object does not affect the color of the shadow. तो शैडो के जो फॉर्मेशन है तो उसका स्क्रीन क्या होगा? तो स्क्रीन कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, वॉल हो सकता है, इसकी भी शैडो पड़ती है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है हम खाली उसके शेप से ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, बट कलर में
कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। शैडो का जो कलर है वो हमेशा डार्क ही होता है। अब चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका कलर चाहे जो भी हो, पर जो शैडो पड़ता है वो हमेशा डार्क ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ शैडो ड्यूरिंग द डे। Shadows appears different at different times of the day because the size and the position of a shadow depend on the size and position of the source of light and object. अब शैडो अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखाई देते हैं, कभी बड़े कभी छोटे, क्योंकि ये जो साइज और पोजीशन होता है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर। The shape and the length of the shadows change because the sun appears to move across the sky from morning to evening due to the movement of earth. Shadows are longest in the morning and in the late afternoon. This is because in the morning and evening the sun is far away, thus the shadows are long. They are shortest at noon when the sun is overhead. It is hitting all the area around the object, so a very little shadow is formed. तो शैडो की शेप और लेंथ चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो सन है वह स्काई में अलग अलग होता है। मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन की रेज हैं वो स्लैंटिंग होती है, और आफ्टरनून में सन की जो रेज है वह एकदम स्ट्रेट होती हैं। तो वो डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ अर्थ पर। तो मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी जो शैडो है वो लॉन्गेस्ट पड़ती है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में सन बहुत दूर होता है हमसे और उसकी जो रेज हैं वह स्लैंटिंग गिरती हैं, इसलिए शैडो लॉन्ग होती है मॉर्निंग और इवनिंग में। बट नून के टाइम हमारी जो शैडो है वह शॉर्ट होती है, क्योंकि सन हमारे ओवरहेड में होता है, हमारे ऊपर होता है, इसलिए जो हमारी शैडो है वह छोटी होती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। A shadow is formed when an opaque object comes in the path of light. A shadow is always formed on the opposite side of the source of light. The shape and the length of the shadows change during the day. Shadows are always dark. A shadow shows only the shape of an object. तो शैडो कब फॉर्म होता है? जब ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है तो शैडो फॉर्म होता है, और शैडो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट साइड में फॉर्म होता है, और दिन के समय शैडो का शेप और लेंथ चेंज हो जाती है और शैडो हमेशा डार्क होता है। शैडो के कारण हम ऑब्जेक्ट के शेप को पहचान सकते हैं, बट वह कौन से कलर का है उसके बारे में हम नहीं पहचान सकते। ओनली उस ऑब्जेक्ट के शेप को हम पहचान करके ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं।